اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین اما بعد۔ نہج البلاغہ کے مفاہیم کی وضاحت کے لیے اپنے حسب استطاعت مدت سے سلسلہ یہ جاری و ساری ہے۔ دعا گو ہیں پروردگار آپ احباب کی ان محنتوں کو جو زحمت کرتے ہیں قبول فرمائے، اور ہمارے جناب مولانا غلام حسین عدیل صاحب جو اس پیغام کو دوسرے علماء اکرام کے پیغامات کو ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے دنیا بھر میں پھیلاتے ہیں، پروردگار ان کے مشن کو اور ترقی عطا فرمائے۔ جن گھروں میں یہ سلسلہ آپ منعقد کرتے ہیں پروردگار اس گھر کو برکتوں کے نزول کا مقام بنائے۔ بالخصوص آج ہم جناب برادر امیر شیرازی صاحب کے گھر میں حاضر ہیں، تو پروردگار ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، اور ذکر علی ابن ابی طالب کا بہترین یہ نمونہ ہے، بہترین یہ ذریعہ ہے۔ میں آج چاہ رہا ہوں گفتگو ہو نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 11 پہ، اور اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت تقسیم کی ہے آیت اللہ العظمہ علیہ خوئی کے ایک بہت ہی آپ کہیے کہ ایک محقق شاگرد علامہ جواد مغنیہ، جن کی نہج البلاغہ پہ 4 جلدوں میں کتاب ہے، شرح فی ظلال نہج البلاغہ، اور ان کی 6 جلدوں میں تفسیر قرآن مجید بھی ہے۔ بہرحال اپنے انداز سے فوت ہو گئے، لبنان سے ان کا تعلق تھا، اور اس حوالے سے واقعاً ایک محقق، اور محقق بھی ایسے جو اس دور کے ماحول کو اور اس دور کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیق کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم اس کو شہر تو نہیں کہہ سکتے، حاشیہ ہے ان کا، لیکن خوبصورت حاشیہ۔ ان کا ایک تحریر جو دیکھ رہا تھا، جب 4تھی جلد میں کلمات کسار کی شرح کی ہے انہوں نے، تو ابتدا میں فرماتے ہیں کہ اس شرح میں آپ کو یعنی نہج البلاغہ کی حکمت کے حصے میں آپ کو 3 قسم کے علوم نظر آئیں گے۔ ذرا باریک چیز ہے، اور آپ کو حضرات الحمدللہ ان چیزوں کو سمجھنے والے ہیں کہ نہج البلاغہ کی یہ حکمتیں جو ہیں وہ 3 قسم کی ہیں۔ ان کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 3 علوم کا انہوں نے نام دیا، اور ان علوم کو اگر جمع کریں تو وہ بنتے ہیں علوم انسانی۔ ہمارے ہاں ابھی انگلش میں آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ علوم انسانی، انہوں نے پھر ان علوم یعنی انسان سے متعلق جو علوم ہیں انہوں نے پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک فرماتے ہیں کہ وہ ہے علم اجتماع، یعنی اس زمانے میں سوسائٹی کی ضروریات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک ان کا جملہ ہے، اور بہت خوبصورت تقسیم ہے، مجھے بہت پسند آئی، آپ حضرات تک منتقل کر سکوں کہ یہ جو 480 کلمات کسار آپ پڑھنے جا رہے ہیں، ان کا یا تعلق علوم انسانی میں سے علم اجتماع سے ہے۔ یعنی علم اجتماع سے مراد کیا ہے، خود انہوں نے وضاحت فرمائی ہے کہ سوسائٹی کی ضروریات کیا ہیں، اور سوسائٹی کی مشکلات کیا ہیں، اور ان مشکلات کا حل کیا ہے۔ یہ گویا ابتدا میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ان کلمات میں اس کی کمیونٹی کی ضرورت بھی، کمیونٹی کی مشکل بھی، اور اس کا حل بھی آپ کو علی امیر المومنین کے کلام میں نظر آئے گا۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ علوم میں سے، علوم انسانیہ میں سے دوسرا علم ہوتا ہے علم نفس، اور علم نفس کی کافی ٹائم پہلے میں نے اس کو پڑھا تھا اور اپنے نوٹس وغیرہ بھی بنائے تھے، تو آج جب دوبارہ اس کو
دیکھنے کا موقع ملا تو اور اس میں ایک دلچسپی اور اس میں دقت نظر آئی، اور باریک بینی کے ایک بزرگ نے کیسے اس کو پیش کیا۔ علم نفس کیا ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ علم نفس یہ ہے کہ اس ذات انسان کی، شخص انسان کی، ایک پرسنلی اس کی سلامتی کس میں ہے اور اس کا نقصان کس میں ہے، اس کے امراض کیا ہیں، امراض انسانی، اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہ اس کو انہوں نے کہا ہے، یہ ہے علم نفس۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ فرماتے ہیں وہ ہے علم اخلاق، اور علم اخلاق وہ فرماتے ہیں نہ اس کا تعلق علم اجتماع سے ہے اور نہ ہی اس کا تعلق علم نفس سے ہے، یہ الگ علم ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے علم اخلاق کا کہ علم اخلاق آپ کو جیسے فقہ میں حلال اور حرام کا بتلاتا ہے، علم اخلاق آپ کو روحانیت کے حلال اور حرام کا بتلائے گا۔ کہ مثلا اب تکبر جو ہے وہ برا ہے، اور تکبر جو ہے وہ اس کا علاج کیا ہے، اور یہ چیزیں اس میں، تکبر ایک بیماری ہے، اس کا انہوں نے علاج بیان کیا ہے، اور تواضع مثلا ایک صفت ہے، اور اس کی صفات انہوں نے اور اس کے فضائل انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اب یہ 3 قسم کے علوم انہوں نے بیان کیے ہیں، اور لیکن جو میں تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں یہ جملہ کہ وہ فرماتے ہیں ان کا سب علوم کا آپ کو ایک نچوڑ ان 480 کلمات امیر المؤمنین میں ملے گا، علم اجتماع بھی، علم نفس بھی، اور علم اخلاق بھی۔ اب یہاں تک جو ہے اس سے ہم شروع کریں گے 2-3 کلمات جو مجھے بیان کرنے ہیں، وقت ہوا تو انشاءاللہ کلمہ نمبر 11، اور پھر اسی کے ساتھ کلمہ نمبر 6، اور ایک خوبصورت سا فرمان جناب امیر علیہ السلام کا ہے وہ 142، اور کچھ جملے جو ہیں وہ خطبہ نمبر 23 کے۔ تو یہ 4 چیزوں میں سے ہم کوشش کریں گے، لیکن چند دنوں سے، تقریباً 4-5 دنوں سے ایک چیز جو ہے وہ کافی یعنی پریشان کر رہی ہے، اور وہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کہ لوگ جو ہیں وہ نہج البلاغہ کو یا کلام امیر المؤمنین کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی خارجیت کس طریقے پہ جناب امیر علیہ السلام کے فضائل کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک جگہ پہ یہ ایام جو ربیع الاول کے ایام میں میلاد کی ایک محفل ہو رہی ہے، شیعہ سنی اس میں جمع ہیں، اور ایک صاحب جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، جو ابھی تک مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے، میں ان کی تلاش میں ہوں کہ ان کا کوئی عطا پتہ مل جائے تو ان کو بتلائیں۔ وہ جناب تقریر کر رہے ہیں، جس ساتھی نے مجھے کلپ بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ کہتا ہے کہ ہم جب بھی یہ چونکہ نہج البلاغہ سے مربوط چیز ہے اس لیے یہاں عرض کر رہا ہوں، وہ یعنی واضح طور پر وہ لگتا ہے کہ یہ شیعیت کا ایک مخالف بندہ بہرحال چیز کیسے پیش کرتا ہے کہ ہم نے شیعہ علماء کو جب بھی سنا ہے وہ کہتے ہیں علی مدینۃ العلم کے باب ہیں، اور اسی حدیث پہ زور دیتے رہے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابها، انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ ہر شیعہ سے ہم یہی سنتے آئے ہیں۔ کاش کوئی ہمیں یہ بھی بتلاتا کہ وہ جن تعلیمات کو دروازہ علی ہیں وہ تعلیمات کیا ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا اعتراض، اور اس انداز میں کہ یہ کسی نے نہیں بتلایا ہے کہ وہ تعلیمات علوی کیا ہیں۔ لیکن ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اگر یہ ابن ابی الحدید نے کہا ہے، اور بعض جو ہیں وہ ابن ابی الحدید معتزلی سنی ہے، وہ کہتا ہے کہ اب کسی کو کہا جائے دن کے وقت کہ سورج جو ہے وہ کیا ہے، اب سورج جو ہے اس کو کہا جائے یہ سورج ہے، یہ سورج ہے، وہاں سے طلوع ہوتا ہے، وہاں سے غروب ہوتا ہے۔ اب اگر اس کی آنکھیں ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور اگر نابینا ہے تو آپ 1000 دفعہ اس کو کہیں تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گی۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں، ہم یہی تعلیمات جناب امیر المومنین کیا ہیں، لوگوں کو اس حدیث کو رد کرنے کا اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن وہ جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں ان پہ اعتراض کر کے کہ ہاں پھر وہ تعلیمات علی بھی بتلاؤ۔ اب 2 چیزیں اس میں، پہلے تو یہ ہے کہ ایک بندہ جب اس حدیث کو مانتا ہے
तालीमात अलवी अगर मैं नहीं बतला रहा तो क्या अली मेरा ही है कि मुझे ही वो तालीमात बयान करनी है? कि आपका भी फरीज़ा नहीं बनता एक अहले सुन्नत आलिम के हवाले से कि अपनी कम्यूनिटी को भी बतलाओ और ख़ुद भी उसका मुताला करो कि ये है तालीमात अलवी। उन तालीमात अलवी में से मैं यहाँ इस हवाले से हम प्लेटफार्म से और हिदायत के ज़रिए से ये आवाज़ दूर दूर तक जाती है, ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि तालीमात अलवी के नामों में से सर फहरिस्त नाम है नहजुल बलागा का। अगर कोई इस हदीस को कबूल करता है कि जनाब पैगम्बर अकरम फरमा रहे हैं अन मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, या फरमाते अन दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, तो उस दार हिकमत या दार इल्म से जो चीज़ ली जा सकती है उसका एक छोटा सा नमूना नहजुल बलागा की सूरत में मौजूद है। और भला हो इब्न अबिल हदीद मुअतज़ली का, इब्न अबिल हदीद मुअतज़ली जब नहजुल बलागा की 20 जिल्दों की शरह, ये 4 जिल्दों में बड़ी तख्ती में किसी ज़माने में शाये होती रही, इस वक्त जो है वो 10 हिस्सों में शाये हो रही है, हर हिस्सा जो है वो 2-2 जुज़ है, तो ये कुल 20 जिल्दें बनती हैं इसकी। जब ये नहजुल बलागा की शरह शुरू करता है तो उसने शुरू में कहा कि अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल का बयान, ये उसकी शरह को देख रहा था सफ़ा 17 पे, अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल के बयान को कैसे खुलासा किया जाए जबकि अली के दुश्मन भी अली के फ़ज़ाइल को कबूल करते हैं। फिर वो कहते हैं कि उलूम इंसानी जो है या उलूम जहानी जो है वो इनको तकसीम किया जाए तो उनमें सर फहरिस्त इल्म अली क्या इल्म इलाही आता है। लफ्ज़ उसके ये हैं इल्म इलाही सबसे ज़्यादा, यानी जिसको हम कहते हैं इल्म तौहीद या मारिफत खुदा। इब्न अबिल हदीद कहता है कि उलूम का सरदार इल्म जो है वो है मारिफत खुदा या इल्म इलाही। और फिर कहते हैं कि इसका अगर इब्तिदा होती है, बड़ा खूबसूरत जुमले हैं, इसकी अगर इब्तिदा होती है तो भी अली से, इसकी इंतहा होती है तो भी अली से, इसकी फुरा निकलती हैं, लफ्ज़ फ़र इस्तेमाल किया उसने, इसकी अगर शाखें निकलती हैं इल्म तौहीद की तो वो भी अली अलैहिस्सलाम से ही निकलती हैं। अब अगर कोई शख्स जो है वो को मौलवी इस हदीस के रूप में कि तालीम दो, तो हम अर्ज़ ये कर रहे हैं कि अगर नहजुल बलागा को आप पढ़ें और नहजुल बलागा के फैलाने के ज़रिए से इस दौर में भी इन्हीं सालों और इन्हीं महीनों में हमने खुद देखा है कि अगर खुतबा अली कोई पढ़ता है तो वो समझता है कि, यानी एक तो वो पुराने मिस्री उलमा का था कि अगर सैयद सज्जाद ना होते, सहीफ़ सज्जादिया ना होता, हमें पता ही नहीं होता कि खुदा से बात कैसे करनी है या हमें तौहीद ही ना। लेकिन मैं उस उर्दू ज़बान तबके में और पाकिस्तान के तबके में यह अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर इस दौर में भी किसी ने तौहीद के खुतबे अली को पढ़ा है तो उसके लिए वाज़ेह हो जाएगा कि अली कितना बड़ा मुअल्लिम है। अब उसने सबसे पहले ये किया कि इल्म इलाही का बानी भी, इब्तिदा भी और उसकी इंतहा भी और उसकी फुरू जो है वो भी अली अलैहिस्सलाम से ही निकलती हैं। फिर उन्होंने दूसरे इल्म को कहा इल्म फ़िक़्ह को ले लीजिए, और इल्म फ़िक़्ह के बारे में फरमाते हैं कि हमारे यहाँ इल्म फ़िक़्ह के माहिरीन 3 हैं, 2 हैं। इल्म फ़िक़्ह के माहिरीन 2 हैं, इब्न अबिल हदीद सुन्नी कहते हैं और वो कहते हैं कि पहले हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब हैं और दूसरे अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं। फिर इसकी तफसील में जाते हैं और कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बारे में तो हर किसी को मालूम है कि उसका अली से क्या ताल्लुक़ था, लेकिन अगर फ़िक़्ह की किताबों को आप देखने जाएंगे तो हज़रत उमर के बारे में भी आपके लिए ये वाज़ेह होगा कि जब भी हज़रत उमर किसी मसले में मुश्किल महसूस करते थे या उसके अल्फाज हैं या कोई और सहाबा में मुश्किल महसूस करता था तो वो जाता था अली अलैहिस्सलाम के पास। और यहाँ 3 फरमान और 3 जुमले जनाब हज़रत इसने इब्न अबिल हदीद ने हज़रत उमर के 3 जुमले कोट किए हैं कि जब भी मसला पूछ लेते थे तो हज़रत उमर कहते थे लौला अलीयुन लहलक उमर, या कहते थे कि अल्लाह उमर को उस वक्त जिंदा न रखे जब अबुल हसन उस मुश्किल के लिए हल करने के लिए मौजूद न हो। और तीसरा यह है कि इसी किस्म का तीसरा जुमला भी उसने लिखा है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम अगर न हो तो ये मसाइल हल न हो। मैं इन जुमलों को जो है वो देख रहा था और गौर कर रहा था कि हज़रत उमर अगर अपनी ज़िंदगी में जनाब
अमीरुल मोमिनीन को कहते हैं कि कोई मुश्किल ऐसी ना आए कि जिसके हाल के लिए अली ना हो तो मैं बाकी हूँ। तो अभी हम किसको कहते हैं? मुश्किल कुशा। बाद लोगों को अमीरुल मोमिनीन को मुश्किल कुशा कहना जो है वो मुश्किल लगता है। अब हम क्या कहें? जनाब हज़रत उमर जो है वो कह रहे हैं कि खुदा मुझे ज़िंदा न रखे जब कोई ऐसी मुश्किल आए और अली मौजूद न हो। अब ये खुद एक जो है वो अली अमीरुल मोमिनीन को मुश्किल कुशा फ़िक़्ह में मान रहे हैं। फिर तीसरा इल्म जो है वो इब्न अबिल हदीद ने कहा कि तीसरा इल्म लीजिए, इल्म तफसीर या इल्म कुरान। और उन्होंने लिखा है, ये लफ्ज़ उनके ये हैं जिल्द अव्वल सफ़ा 19 में फरमाते हैं वमिनल उलूम इल्म तफसीर कुरान। उलूम को अगर आप गिनना चाहेंगे तो उलूम में से एक इल्म है इल्म तफसीर कुरान। उसके आगे लिखते हैं व अनहु उखिज़ा व मिनहु फुर्रिया। इल्म में तफसीर भी इसी से लिया गया है और इल्म तफसीर की सारी ब्रांचेस जो हैं वो अली अलैहिस्सलाम से ही फूटती हैं। और इल्म तफसीर में सबसे ज़्यादा जो ये एक मेरा ख्याल में ये है कि अगर आप इस पर राज़ी होंगे तो अगले सेशन से हम एक वक्त के लिए नाजुल बलागा बतौर तफसीर कुरान, यानी नाजुल बलागा और कुरान के हवाले से या नाजुल बलागा और तफसीर कुरान के हवाले से अर्ज़ करेंगे। वैसे हमारे एक साथी ने ये किताब जो है वो परवरदिगार उनको सेहत सलामती अता फरमाए, प्रोफेसर आबिद साहब ने ये किताब जो है वो ये कुरान मजीद अज़ निगाह नाजुल बलागा, यानी इसमें ज़्यादा यह है कि नाजुल बलागा में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की अज़मत क्या बयान की है। लेकिन हम इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इसकी तफसीर कैसे बयान की है, तफसीर की किस्में कितनी हैं और नाजुल बलागा में कौन कौन से अंदाज से वो तफसीर बयान की गई है। इस पर एक अच्छी किताब है, बहुत मुझे पसंद है। सैयद जवाद मुस्तफ़वी मशहद के थे, उनका PhD का थीसिस है इसमें काफ़ी सालों पहले का, तो बड़ा खूबसूरत अंदाज उन्होंने अपनाया है कि नाजुल बलागा में। और इस किताब के आखिर में भी ये नेट पे भी मौजूद है, अफकार इस्लामी की वेबसाइट पे। इसमें तकरीबन वो 150 आयात जो हैं वो एड्रेस के साथ लिखी गई हैं कि जो नाजुल बलागा में मौजूद हैं। मसलन आखिरी हिस्से में आप देखिए ये सिलसिला ऐसे किया गया है कि आयात हिकम व मवाइज़, आखिरी हिस्से में यानी हिकम व मवाइज़ में मसलन वल अर्द व मा बैनहुमा बातिला, ये आयत जो है वो सूरह साद की आयत 27 है और हिकमत नंबर 78 में 78 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इसको इस्तेमाल किया है। मसलन अब ये सारी जो खुतबात में कौन कौन सी आयात आई हैं, खतूत में कौन कौन सी आयात आई हैं, और फिर जो अफकार इस्लामी का नाजुल बलागा है वहाँ जहाँ ये आयात आई हैं उन आयात का एड्रेस भी अलग लिखा गया है नाजुल बलागा के हाशी में, और उसका आयात का निशान भी अलग रखा गया है ताकि नाजुल बलागा का मुताला करते हुए कोई बंदा जो है वो जब इस आयत पे पहुंचेगा तो उसके लिए वाज़ेह है कि ये कुरान मजीद की आयत है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले सेशंस में कुरान मजीद अज़ निगाह नाजुल बलागा इस पे गुफ्तगू हो, कुरान मजीद बतौर तफसीर कुरान इंशाअल्लाह। तो ये उसमें फिर वो कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हमारे यहाँ अहले सुन्नत के यहाँ अब्दुल्ला इब्न अब्बास से सबसे ज़्यादा रिवायात मौजूद हैं तफसीर की। अब वो कहते हैं कि फिर यहाँ इब्न अबिल हदीद ने लिखा है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बारे में आप जानते हैं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जब किसी ने पूछा कि आपका और आपके इल्म का अली से कैसा तवाज़ुन है और उसमें मुकायसा किया जाए, तो जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि मेरे और अली के इल्म की ऐसी ही सूरत है जैसे दरिया में एक कतरा हो। अब जब ये एक सुन्नी आलिम दीन ने तफसीर के मौजू पे लिखा है, लिहाजा अगर कोई आदमी ये जानना चाहता है कि कुरान की तफसीर सीखे तो उसका माखज़ जो है वो अली इब्न अबी तालिब की ज़ात होगी। तो बहरहाल ये इल्म तफसीर है। और एक तो ये चीज़, और दूसरा ये है कि अभी बहुत सारे वाक़यात ज़हन में आ रहे हैं। अभी एक बहुत खूबसूरत किताब और जो अफराद इससे नहीं आगा उर्दू ज़बान में, अल्लामा मुफ्ती जा हुसैन मरहूम की सीरत अमीरुल मोमिनीन 2 जिल्दों में है। और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो चुकी है।
اور اس کے دوسرا حصہ جو ہے وہ دوسری جلد ہے. دوسری جلد کا نام ہی علامہ مفتی جاور حسین مرحوم نے لکھا ہے امیر المؤمنین کا علمی مقام. امیر المؤمنین کا علمی مقام. اور اس علمی مقام میں 53 قسم کے ایسے ابواب انہوں نے بیان کیے ہیں. مثلا توحید کا باب، توحید میں پھر جو ہے وہ عدالت الہی کا باب، نبوت کا باب، اور اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ اگر علوم ہیں تو ان علوم میں جناب امیر علیہ السلام کا مقام کیا ہے. اور تفسیر کی بحث میں جب وہ آتے ہیں تو انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ قرآن مجید میں لفظ لا شیء استعمال ہوا ہے. آیت انہوں نے کوٹ کی لا شیء استعمال ہوا ہے. وہ تحریر کرتے ہیں کہ حاکم شام کے پاس روم کا ایک قاصد آتا ہے، قیصر روم کا، کہ یہ لا شیء کیا ہے آپ کے ہاں. اب شام میں جب قیصر روم کا سفیر یا اس کا نمائندہ آتا ہے ایک شے پوچھنے کے لیے کہ یہ لا شیء کیا ہے، تو اب حاکم شام کے پاس اس کا مشیر بیٹھا تھا عمرو ابن عاص. تو اس نے دیکھا عمرو ابن عاص کو کہ مجھے تو نہیں آتا، آپ بتلا دو. یعنی دیکھنے کا یہی تھا. تو عمرو ابن عاص نے کہا کہ اس مشکل کا حل علی ہی کے پاس ہے. ذرا توجہ فرمائیے، مفتی جاور حسین مرحوم نے سیرت میں لکھا ہے کہ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ شام میں ہیں اور علی علیہ السلام کوفہ میں ہیں. تو اس نے کہا کہ کسی شخص کو جو ہے وہ تیز رفتار گھوڑا دے کے بھیجو اور اس کو کہو کہ چلا جائے گھوڑا لے کے کوفہ، اور علی علیہ السلام کو کہے کہ میں گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں. اور جب وہ پوچھیں کہ قیمت کیا ہے تو قیمت اس کی کہنا لا شیء. اب لا شیء آپ پوچھیں گے تو وہ جو چیز آپ کو دیں گے وہی ہماری مشکل کا حل ہوگا. اب جناب امیر علیہ السلام کے پاس آ گیا، کئی دفعہ بھیجوایا حاکم شام نے، کئی دفعہ شام سے تیز رفتار گھوڑے کہ اپنے مشکلیں جو ہیں وہ حل کرنے کے لیے. ضمنی بات آ گئی، یہ خط نمبر 53 جو جناب مالک اشتر کو جناب امیر علیہ السلام نے لکھا تھا. ایک خط جناب محمد ابن ابی بکر کو بھی مختصر سا دیا تھا جناب امیر علیہ السلام نے کہ آپ نے حکومت میں کیا کیا چیزیں مد نظر رکھنی ہیں. جناب محمد ابن ابی بکر شہید ہو گئے تو ان کے سامان میں سے جو ہیں وہ یہ خط نکلا. تو خط حاکم شام تک پہنچ گیا اور وہ اکثر پڑھا کرتا تھا وہ کہ کیا ہمیں حکومت کیسے کرنی چاہیے اور علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں. ایک دن جو ہیں وہ ایک صاحب نے، زیادہ قریب یہی ہوتے تھے عمرو ابن عاص، تو انہوں نے کہا روز جو ہے وہ یہ پڑھتے ہو اس میں تو اس کو جلا دو. انہوں نے کہا آپ ایسے ہو ویسے ہو، اب اتنی قیمتی چیزوں کو جلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے دشمنی کر کے بھی حاکم شام جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام کی علمی مقام کی عظمت کا قائل ہے. ایسی قیمتی چیزوں کو بھی جلایا جاتا ہے، آپ ایسے ہو ویسے ہو. اس نے کہا کہ پھر علی سے دشمنی کیوں ہے؟ تو اس نے وجوہات بیان کی. پھر وہ کہتا ہے اگر کسی، یہ دلچسپ بات یہ ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ حاکم شام جو علی کی تحریروں کو پڑھتا ہے تو پھر آپ کی کیا عزت رہے گی؟ اس نے کہا ہم کب یہ مانیں گے، دیکھیے ہم یہ کب مانیں گے کہ یہ علی کی تحریر ہے؟ ہم تو کہیں گے کہ جناب محمد ابن ابی بکر کے پاس یہ تحریر تھی تو ان کو ان کے باپ نے جو ہے وہ دی تھی، ہم ان کے باپ کی تحریر پڑھ رہے ہیں. اب یہ ہے استفادہ بھی کرنا ہے لیکن ماننا بھی نہیں ہے. تو بہرحال مفتی جاور حسین مرحوم نے اس کتاب میں علی کے علمی مقام میں 53 چیزیں جو ہیں وہ نقل کی ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات بھی نقل کیے ہیں کہ جب حکمران ایک فیصلہ کرتے تھے اور علی علیہ السلام بھی رہنمائی کے لیے، میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ کے چاہنے والے بھی رہنمائی کے لیے گلیوں میں پھرا کرتے تھے، جہاں کوئی ایسا الٹا ملٹا کام ہو رہا ہے وہاں رہنمائی کر لیتے تھے، لے آتے تھے جناب امیر علیہ السلام کے پاس اور کئی دفعہ فیصلوں کو بدلا ہے جناب امیر علیہ السلام نے. اب وقت نہیں اور نہ یہ پلیٹ فارم ہے. مفتی جاور حسین مرحوم کی یہ کتاب
सीरत अमीरुल मोमिनीन जिल्द 2 जो है वो मुताला करने की किताब है, और इसको भी हमने एक नई अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह ये वेबसाइट पे आपको मौजूद है, मिल जाएगी, पढ़ी जा सकती है। उसमें भी जो आयात हैं या मसलन अरबी इबारतों को इराब दिया गया है, रेफरेंस मुकम्मल जो है वो उसके लिखे गए हैं। तो अगर किसी को अली का इल्मी मकाम देखना है तो बहुत मेहनत है अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम की। तो एक ये 5 उलूम का तज़किरा इब्न अबिल हदीद ने किया है, और ये 52-53 अबवाब इल्मी जो है जनाब मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम ने बयान किए हैं, इनको देखना चाहिए। बहरहाल ये बात उस हवाले से कि अगर किसी को दरवाज़ा नज़र ना आए तो वो दरवाज़ा देख ले, और इस दरवाज़े से मिलता क्या है वो भी देख ले कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा से। अब बहस जो है वो लंबी होगी, तौहीद भी यहीं से मिलती है और कुरान की हकीकत भी यहीं से मिलती है। एक सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। अब पलट के आते हैं उस असल मौजू की तरफ जो नहजुल बलागा के हिकमत भरे अकवाल में से हिकमत नंबर 11 है। पहले भी कभी अर्ज़ कर चुका हूँ इसको, और इसको थोड़ा तफसील से आज अर्ज़ करते हैं। और ये है हिकमत, शुरू ये होती है अजज़ुन्नास मन अजज़ा अन इक्तिसाबिल इख्वान। ये उलूम इंसानी, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लामा जवाद मगनिया ने इसको बयान किया है। ये देखिए, ये हैं उलूम इंसानी, और इसमें कहते हैं कि एक इंसान के यानी उसके अमराज क्या हैं और उसके इलाज क्या है, या एक इंसान का कमाल क्या है और उसका ऐब क्या है, आप इसको यूँ कह सकते हैं। ये मेरे ख्याल में ये इल्म नफ्स का एक मसला है कि एक इंसान का कमाल क्या है और उसका नक्स क्या है। अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बड़ा आजिज़ है वो शख्स, मुफ्ती साहब का तर्जुमा ही नकल कर दें, लोगों में बहुत दरमानदा है वो जो अपनी उम्र में कुछ भाई अपने लिए न हासिल कर सके। इख्वान लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जो दोस्त न बना सके, किसी को अपना हमराही न बना सके, वो आजिज़ है। और फिर अगले जुमले में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इससे भी आजिज़ वो है कि जो बने हुए दोस्तों को खो दे। अब ये एक आम सी चीज़ है। अब देखना ये है, मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम ने भी बड़ा खूब इस पे हाशिया लिखा है। वो फरमाते हैं कि एक मुस्कराहट से दोस्त बना सकते हैं आप, और आपके एक ये लफ्ज़ बहरहाल मेरे हैं कि आपके एक नाजेबा लफ्ज़ से आप खो सकते हैं वो दोस्त। यानी दोस्त खोना भी एक छोटी सी चीज़ से हो जाता है, और दोस्त कमाना जो है वो भी। अब दोस्त की कमाई के लिए एक हकीम ने बड़ा खूब कहा, ये नोट करने की चीज़ है जो हम ज़िंदगियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो हकीम का कौल ये है कि किसी से मुस्कराते हुए चेहरे के साथ मिलो एक, और किसी को गर्म जोशी के साथ सलाम करो 2, और अगर कहीं आप बैठे हैं और कोई आ जाता है तो आप मुनासिब जगह पे उसको बिठाने की जगह दो 3। तो ये 3 चीज़ें गोया हब्बालतुल सदाकत हैं, दोस्ती के लिए एक जाल है। 3 चीज़ें, मिलो किसी से तो मुस्करा के मिलो, और सलाम करो तो गर्मजोशी के साथ सलाम करो, बैठे हुए हो तो मुनासिब जगह उसको बिठाओ। अब हमारे यहाँ एक सिलसिला जो है वो मामूली चीज़ें, 3 मामूली चीज़ें हैं, और बाज़ औक़ात हम कोताही करते हैं कि हम समझते हैं हम जहाँ बैठे हैं, हम अगर यहाँ से उठ गए तो अभी हमें कहीं जगह नहीं मिलेगी। पहले यह है कि बैठने वाले को, बहरहाल हम ये मौजू नहीं है, लेकिन यह है कि ये बशाशत ही में आती हैं। यानी आप पहले मरहले पे दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, ये 3 चीज़ें अगर हम अपनाना शुरू करें। आप देखिए कि इस ज़माने जो है वो हर कोई, हमारे एक मरहूम शौकत भाई पंजवानी कभी कभी कहा करते थे, कोई अगर रेड लाइट के ग्रीन होने पे खड़ा हुआ हो तो आप हॉर्न नहीं दिया कीजिए, इसलिए पता नहीं उसका आज बिल आया होगा और बेचारे को परेशानी होगी कि मेरा इतना बिल है कैसे आएगा, लिहाजा वो परेशान है, उसको आप और परेशान नहीं करें।
आजकल हर कोई परेशान है, और वैसे जो है वो ये अक्टूबर की 14 के बाद जो है वो बरतानिया में तो बिलों की वजह से सारे ही परेशान हैं। तो उस हवाले से जो है वो अभी परेशानी है, उस परेशानी को जो है वो अपने अंदर रखिए एक। और दूसरा यह है कि अगर परेशानी अंदर रहे, अब पहले तो यह है अलबत्ता इस परेशानी का एक जुमले में जिक्र हो जाए, बाज़ चीज़ें होती हैं परेशानियां जो है इंसान को, कुछ परेशानियां होती हैं जो एक दो बंदों को होती हैं। जब सबको परेशानी हो तो वो परेशानी परेशानी ही नहीं रहती, जहाँ बाकी सिलसिला चलेगा वो हमारा भी चलता रहेगा। तो उसमें यह है कि, लेकिन यह आज अर्ज़ करना चाहता हूँ यहाँ, हमारे एक अजीज़ थे, उसको स्कूल में टीचर नाराज़ हुआ, वो पाकिस्तान की बात है, हमसाए हमारे थे, तो वो गालियाँ देता टीचर को, तो कहता था वो यानी जुआ आपका, उसमें टीचर भी पाकिस्तान का, वो जुआ हारा है और मारता हमें है ना। यानी अभी क्या है कि घर में कोई नाराज़गी हो तो आप उस नाराज़गी को बच्चों पे या दूसरे मिलने मिलाने वालों पे उसका इंतकाम नहीं लीजिए। अक्सर ऐसा होता है, यानी बिलखुसूस आप जो काम करते हैं मसलन ऑफिसेज में, तो ऑफिसेज में बॉस जो होते हैं या मसलन टीचरों का यही सिलसिला होता है, और फिर ये घर के सरबराह में भी बाज़ औक़ात यही चीज़ आ जाती है, आपको तकलीफ़ कहीं और से मिली और आप उसका रंज जो है वो कहीं और ज़ाहिर कर रहे हैं। भाई आपको अगर रास्ते में आपको अपने ऑफिस में कहीं कोई नाराज़गी है तो उसका इज़हार बच्चों पे आके या बीवी पे आके, या बीवी को अगर वहीं से कोई हुआ है तो शौहर पे आके जो है वो नाराज़गी करने का क्या है। आप अपनी नाराज़गी को अपने तक रखें। इस हवाले से जब चेहरे का सिलसिला है तो उसको चेहरे को हशाश बशाश रखिए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सीने को अपने गमों का खजीना बनाए रखते हैं, ये एक अलग बात है, वो भी नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जिन दोस्तों के साथ आप अपना वो गम बांट सकें। और फैमिली सिलसिले में मेरे ख्याल में बीवी से बेहतर जो है वो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रहे कि दोस्त हकीकी वही होता है कि जब बात उसके कान तक पहुँचे तो आपको ये फ़र्क ना हो कि ये मेरे और उसके अलावा किसी तीसरे बंदे तक जाएगी। जहाँ ये होता है कि हमारी बात जो है वो बाहर जाएगी, दो से फिर दौर में और ज़माने भर में आएगी, तो वो हकीकत में दोस्त ही नहीं है। इसलिए कि और उसमें फिर ये भी हो सकता है, बाज़ इंसान के ज़हनी शऊर इतना होता है कि वो ऐसे नहीं है कि आपकी मुखालफत की वजह से, बाज़ औक़ात आपके हमदर्द होने की वजह से दूसरे को बतलाएंगे, तीसरे को बतलाएंगे, बात जो है वो सारे उसमें शहर में फैली हुई होगी। बात कहाँ जा रही थी कि आप अगर कोई गम है, कोई परेशानी है, तो आप उसके चेहरे पे जो है वो, उसमें मुफ्ती जावर हुसैन मरहूम ने यहाँ एक हाशिए में बड़ा खूबसूरत लिखा है जुमला, और मैं इसको कभी इस प्लेटफार्म से अर्ज कर चुका हूँ कि आपकी इस पेशानी की सिलवटें जो हैं वो बंदे को अपनी तरफ खींच भी सकती हैं, और यही उसके चूँकि नाराज़गी और खुशी का इजहार इनसे अलग अंदाज से होता है, यही किसी को करीब भी कर सकती हैं, यही किसी को दूर भी कर सकती हैं। तो ये है कि इतनी आसानी है किसी को दोस्त बनाना, और फिर अगर दोस्त बना के फिर कोई खो दे तो उसमें वो उससे भी बड़ा आजिज़ है। इसी दोस्ती के हवाले से जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का एक और फरमान जो हिकमत नंबर 6 में है, और वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल बशाशतो, हिकमत 5 अल बशाशतो हिबालतुल मवद्दत, कुशादा रोई तर्जमा किया मुफ्ती जावर हुसैन मरहूम ने। कुशादा रोई मोहब्बत और दोस्ती का फंदा है। अब इसमें और चीज़ें भी हैं, मसलन यही जो बात हम कर रहे हैं, सदरुल आकिल संदूक सिर्रे, अक्लमंद का सीना उसके भेदों का मखज़न होता है, ख़जाना होता है। तो बहरहाल यहाँ है कि बशाशत यानी अच्छे मुस्कुराते हुए चेहरे से, खुशहाल चेहरे से जो है वो इंसान दूसरों को दोस्त बना सकता है। अब दोस्ती का एक तरीका यह होता है कि मसलन कोई परेशान आपके पास आ जाएगा कि शायद मुझे यहाँ परेशानी का हल हो। अब अगर कोई आपके पास आता है तो उसको एक तवक्को होती है कि मेरी परेशानी का यहाँ हल होगा। अगर आप अपना किस्सा जो है वो शुरू कर देंगे तो वो उल्टा कहेगा कि अब मैं कहाँ आया,
آپ اپنے پریشانی بیان کرنے کے بجائے اس کی پریشانی جو ہے اس میں، اور یہ خوش قسمتی ہوتی ہے، ممکن ہے اس کے دل میں کتنے دکھ ہوں لیکن کوئی آ کے اپنے دکھ اس سے بیان کرتا ہے، اور یہ اگر اس کے دکھوں کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے دکھوں کو پھر دور کرتا ہے۔ یہ ایک فرمان ہے البشاشت و حبالت المودت، اور یہی عقل کی نشانی ہے۔ اس جملے کو جو سائیکالوجی کے ماہرین ہیں انہوں نے بہت اس کو پسند کیا ہے، اور یہ باقی ائمہ سے بھی اور بلکہ خود پیغمبر اکرم سے بھی یہ جملہ نقل کیا گیا ہے۔ اس جملے کو یہ نمبر 142 بالکل مختصر سا 3 لفظوں کا جملہ ہے۔ التودد نصف العقل، تودد ہوتا ہے یعنی کہ دوسرے سے محبت کرنا، دوسروں سے محبت کرنا اور اظہار محبت کرنا نصف العقل، یہ عقل کے نشانی ہے، گویا آدھا عقل آپ کا خلاصہ ہوتا ہے اس میں کہ آپ دوسرے کے لوگوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اب یہ التودد نصف العقل، اس سے خود اسلام کی بھی اور خود جناب امیر علیہ السلام کی بھی ان اجتماعی علوم میں کیا امام مقام بتانا چاہتے ہیں، یہ ایک خوبصورت جملہ ہے۔ التودد نصف العقل، دوسروں سے محبت کرنا گویا آدھا عقل ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ جو دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں پہ بہت سارا رعب اگر جمانا چاہتے ہیں تو رعب سے جو ہے وہ محبت نہیں ہوتی، اور رعب سے عقل کیا پتہ نہیں چلتا، بلکہ رعب سے جو ہے وہ بے عقلی کا پتہ چلتا ہے، یعنی تکبر جیسی چیزوں کا اظہار ہوگا۔ تو یہ ہے جملہ 142 اور اسی سے ملتا جلتا ہے، چونکہ اس موضوع پہ کبھی ہم نے عرض کیا تھا، دوستی نہج البلاغہ کے خوبصورت موضوعات میں سے ہے۔ بہرحال اس میں سے ایک چیز جو نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 23 میں ایک جملہ وہاں سے عرض کرنا ہے۔ یہ خطبہ نمبر 23 میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ خاندانی سسٹم کے لیے کہ خاندان کو کیسے آپ نے اکٹھا رکھنا ہے۔ یہ بہرحال جناب امیر علیہ السلام کا کلام ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت خوبصورت ہے، ہر جملہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ان جملوں میں جب اللہ کے کلام کا ایک جملہ آ جاتا ہے تو وہ گویا اس میں ایک چمکتا ہوا چاند ہے۔ اس میں ایک آیت ہے احدی الحسنیین، تو یہ اس کو ہم نے الگ کر کے لکھا ہے۔ اس میں خوبصورتی بھی اس ایک جملے کا کہ گویا امیر علیہ السلام کے پورے خطبے کا خلاصہ ان لفظوں میں ہے۔ اس میں جناب امیر علیہ السلام آخر میں اس خطبے میں فرماتے ہیں من تلن حاشیتہ یستدم من قومہ المودۃ، یہ چونکہ خاندانی سسٹم کے لیے یہ خطبہ ہے بیان کیا ہے جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ 23، لیکن یہ عمومی طور پر بھی ہر کسی کے لیے اجتماعی طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے، جو شخص نرم خو ہو وہ اپنی قوم کی محبت ہمیشہ باقی رکھ سکتا ہے۔ من تلن حاشیت ہو، جس کے اطراف، جس کا حاشیہ ہم کہتے ہیں نا، فٹ نوٹ جس کو کہتے ہیں، یا نوٹس جو ہیں وہ سائڈ پہ لکھے جاتے ہیں، تو جس کے اطراف جو ہیں وہ نرم ہو، گویا یہ جناب پیغمبر اکرم کے لیے جو قرآن مجید نے اصطلاح استعمال کیا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب، وہاں لفظ لینتا استعمال ہوا ہے کہ اگر آپ نرم مزاج ہوں گے، نرم مزاجی ہوگی تو آپ قوم کی محبت جو ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ اور من تلن حاشیت یستدم من قوم المودۃ، نرم مزاجی سے قوم کی محبت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہ آخری جملہ قومی روابط کے اعتبار سے، خاندانی روابط کے اعتبار سے، بلکہ یہاں اگر ایک دو جملے اور اضافہ کر دوں، یہ جناب امیر علیہ السلام کے فرمان کا ترجمہ ہے، دیکھو تم کبھی ایسا نہ ہو کہ قریبیوں کو، یعنی اپنے قرابت، اپنے رشتہ داروں کو فقر و فاقہ کی وجہ سے ان کو اپنے سے دور کر دو، اور اگر آپ ان کے اس فقر اور فاقہ کو اور ان کی اس احتیاج کو دور کر سکتے ہو تو آپ دور کرنے سے مت گھبراؤ، یعنی ان کے اس فقر و فاقہ کو دور کرو۔ اور پھر خوبصورت جملے جو بہت سارے افراد جو ہیں وہ بطور
नमूना इस्तेमाल करते हैं, वो है मैं यकबिज़ यदहु अन अशीरतिही, जब अपने ख़ानदान से अपना हाथ रोक लेता है, यानी उसके ख़ानदान को इसकी मदद की ज़रूरत होती है, ये हाथ रोक लेता है। तो ख़ानदान के मसलन 20 अफराद हैं, तो इसने एक हाथ रोका था तो दूसरी तरफ से 20 हाथ रुक गए हैं, लिहाजा आप एक हाथ बढ़ाएंगे तो आपके ख़ानदान के 20 हाथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ फिर फरमाते हैं नरम मिजाजी से काम लो तो मोहब्बत जो है वो आपकी आगे बढ़ेगी। तो ये है ये मौजू कि आप दोस्ती कैसे कमा सकते हैं, उस दोस्ती को कैसे बचा सकते हैं। और ये है आमिरुल मोमिनीन के उलूम की एक झलक। यानी तौहीद अगर देखनी हो तो पहले खुतबे में जाके देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल काइलून। अली आमिरुल मोमिनीन जो है शुरू यही करते हैं कि हाँ सारी हमद सारा ज़माना कर रहा है, लेकिन सारा ज़माना मिल के भी तेरी हमद का हक अदा नहीं कर सकता। और एक जुमला जो बड़े बड़े फ़लसफियों ने इस पे बड़े बड़ी बहसें की हैं, वो ये है कि कोई उसकी सिफत उसकी ज़ात से अलग नहीं है। ये पहले खुतबे के पहले जुमलात में हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल काइलून वला युहसिन अमाहुल आदून, यहाँ से शुरू होता है। और जनाब अमीर फरमाते हैं कि वो अल्लाह वो है कि जिसकी सिफ़ात उसकी ज़ात से अलग नहीं है। ये फ़लसफियों के लिए मौज़ू बहस है और ख़ूबसूरत अंदाज से हमारे उलमा कराम ने इसकी शरह की है कि इसके मकसद क्या है कि अगर ज़ात और हो सिफ़ात और हों, मसलन इसमें जनाब अमीर अस्सलाम फरमाते हैं कि कमालुल इखलास लहू नफ़युस सिफ़ात अन्हु लिशहादत कुल्ल सिफ़तिन अन्नहा गैरु मौसूफ़िन व शहादत कुल्ल मौसूफ़िन अन्नहु गैरु सिफ़त। इमाम फरमाते हैं कि इखलास इलाही ये है और कमाल तंज़ीह ये है कि उसकी सिफ़तों की नफ़ी की जाए। यानी ऐसे नहीं है कि अल्लाह की सिफ़त अलग है, कभी हम बहस कर चुके हैं अकाद की बहस में कि ऐसे नहीं है कि अल्लाह की सिफ़त अलग है और उसकी ज़ात अलग है। उसकी ज़ात वही उसकी सिफ़त है और उसकी सिफ़त वही उसकी ज़ात है। बहरहाल ये एक मौजू है, यहाँ तौहीद से शुरू किया, मारिफत इलाही से शुरू किया और फिर जनाब पैगम्बर अकरम के साथ ताल्लुक़ वो एक मौजू है और बिलखुसूस कुरान मजीद एक मौजू है। लेकिन जो इस ज़माने की ज़रूरियात हैं और इस ज़माने की मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात का हल भी एक बेहतरीन ज़रिया नहजुल बलागा है। और मैंने पिछले सेशन में भी अर्ज़ किया था कि जब हम नहजुल बलागा की बात करते हैं तो हम माज़अल्लाह ये नहीं है कि हम कुरान या पैगम्बर के फरमान को रद्द कर रहे हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये अगर एक शागिर्द जनाब मुस्तफ़ा उनका ये मकाम है तो फिर पैगम्बर अकरम का और कुरान का क्या मकाम होगा, एक। और दूसरा ये है कि अगर कुरान और पैगम्बर के किसी फरमान का कोई मफ़हूम समझ नहीं आता तो अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा का मफ़हूम ये है कि हम उस फरमान को जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के कलाम में या जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के फ़र्जंदान के कलाम से तलाश करें। हम जो यहाँ बैठे हैं हमें भी चाहिए कि ठीक है हम जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की अज़मत को उस अंदाज से दर्क नहीं कर सकते, लेकिन जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की तालीमात जहाँ तक हमें मिली हैं उन तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं ताकि अपने इन अखलाकियात के ज़रिए से और अपनी इन तालीमात को अमली ज़िंदगी में अपनाने के ज़रिए से दूसरों को बताएं कि हम अली अमीरुल मोमिनीन के दर्स के पढ़े हुए हैं। हमारे यहाँ हम जब तलब इल्मी में होते हैं तो किसी उस्ताद की पहचान उसके शागिर्द के ज़रिए से होती है और कभी कभी जो है वो शागिर्द अगर किसी मशहूर उस्ताद का है तो उस पे भी बड़ा भरोसा और बड़ा एतमाद किया जाता है। हाँ अगर ये फ़लाँ उस्ताद का शागिर्द है तो ये यकीनन जो है वो एक अपने मकाम रखता होगा। यानी शागिर्द से उस्ताद की पहचान होती है, उस्ताद से की शागिर्द से पहचान होती है। और इससे आगे एक मसला है और वो है कभी बाप की बेटे से और बेटे की बाप से पहचान होती है। अमीरुल मोमिनीन के बस इसी पे ख़त्म कर रहा हूँ। हदीस पैगम्बर है अना व अलीयुन अबवाया हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। अब अगर आप देखेंगे तो अमीरुल मोमिनीन
फरमान पैगम्बर के मुताबिक इस एतबार से इस उम्मत के बाप भी हैं और इस उम्मत के मुअल्लिम भी हैं। हमें कम अज़ कम ये चाहिए, कभी एक बाप के उन्वान से, कभी एक मुअल्लिम के उन्वान से, कभी एक यानी रूहानी बेटा होकर और कभी रूहानी शागिर्द होके उस अंदाज से अपनी ज़िंदगियों को यूँ ढालना चाहिए कि हमारे एक्शन से, हमारे उठने बैठने से, हमारे आमाल से पहचान हो कि इसका ताल्लुक़ किससे है। परवरदिगार तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए और वो अहबाब जो कलाम अमीर को, तालीमात अमीरुल मोमिनीन को फैला रहे हैं। मुझे कल किसी साथी ने कराची से एक वीडियो भेजी, बड़ा खूबसूरत, वो उसको उन्होंने नाम दिया है बज़्म नहजुल बलागा। वो 6 साल से कराची में हर अतवार को जो है वो एक बज़्म मुनअक़िद करते हैं, यहीं जैसे आप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस बज़्म को 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन वो बतला रहे थे कि हमारी हर अतवार को होती है और इतने ही 15-20 बंदे जो हैं होते हैं और उनका अलबत्ता थोड़ा सा सिस्टम जो है वो अलग है। वो मसलन एक फरमान लेंगे और अगले सेशन के लिए जहाँ उस फरमान को सब में ये बांट देंगे कि ये 1 या 2 फरमान हैं और इन 1-2 फरामीन के ज़रिए से आपने ख़ुद मुताला करना है, देखना है इससे आप क्या समझे हैं। तो उसमें ये नहीं होता कि एक मौलाना ही बोल रहे हैं, आखिर में 5-10 मिनट जो है वो मौलाना की गुफ्तगू होती है, बाकी जो है वो एक सर्कल सा होता है और उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है बज़्म नहजुल बलागा। बहरहाल इस बज़्म को भी परवरदिगार और तरक्की अता फरमाए और जो आप एहतमाम कर रहे हैं उसको कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।